Yeah. So yes. So we were discussing about procurement cycle. This is where actually your SAP starts. This is where the foundation of SAP lies. The procurement cycle. In order to run your enterprise perfectly, you should have these processes, these business processes in your company. So as I told you, behind this every business process, there is a document. There is a document which is exchanged between these business processes. As I told you, if you have any requirement, that requirement will be generated via purchase requisition. Then that purchase requisition will be forwarded to vendor to submit their quotation. That is called as RFQ, which is a request for quotation. That is our second document, request for quotation. We are requesting the vendors to submit the quotation. So, and the next one is, when we got the quotations from the vendors, we have to choose any one suitable vendor for us. Then we have to create a purchase order against that particular vendor. So after creating a purchase order, what will happen? The goods will be received at your location, and you will be posting it as goods received. Like you have received the goods, you are confirming it. If you can remember, in old days, when anybody is going to deliver any product at your doorstep, what they're gonna do? They'll be having a delivery copy, and on that, they'll take a sign of you. Okay, you will take it as delivered, and you'll sign in on it. Nowadays, what is happening is, this Flipkart, Amazon, or the Swiggy, Zomato, all these guys are coming to your doorstep, and they're having some devices with them. Sometimes they'll bring a mobile. In that only you'll see empty screen. Where you'll sign it. Like it's like consignment receipt. So this is called our goods receipt. Goods receipt will be posted after the purchase order. After the goods receipt, there is a document called invoice receipt. So that invoice receipt says like this is the payment which we are gonna pay to the goods which we have received, not which we have ordered. Remember, we are paying to the goods what we have received. So these are the documents. Remember, the first one is PR. The second document is RFQ, request for quotation. The third one is purchase order. The fourth one is GR. Third one is IR, invoice receipt. To create these documents, your computer should have some data. Like I'm from purchase department. I wanted to create a purchase order. So now I started creating a purchase order. But when I'm creating a purchase order, what I need a vendor. You can't search like a Google Tata Group contact number like this. You can't search in Google and SAP. The Tata Group, or it might be the Ratnadeep, or maybe DMart, whatever it is, wherever you're buying, that vendor should be configured in your system. You will be given a code to that supplier, like 1022, 1033, or 10031, whatever might be the number. You have to give a particular SAP number to that particular vendor or the supplier. So that is one case. And the second case is, now we have selected you are creating a PO now. What actually can be seen in a PO is, you have to remember, one is supplier, the second is a material, and the third is the quantity, whatever you needed, right? So the material which we needed, what material you needed, what quantity you needed, that material should be configured in a system. You can't type it as I need 2 blades. You can't type it as 2 blades. It won't be getting there. You can't type it as I need a laptop, like a computer. You can't type it there. It should be configured. SAP is having some default standard procedure to save all your materials. If your company is like, your company always buys sugar from any any vendor in order to make some cakes or chocolates. So what you're going to do is, for that sugar, you will be creating a code in SAP first in the background. That is what, as a functional consultant, me and you, everybody will be doing in the companies. Actually, if Tata Group requires SAP, they can directly buy SAP from SAP company. But why this Tata Group needs consultants from Infosys or from Deloitte, from Info for Accenture? Because we are going to customize that SAP for them in order to use it effectively. They're going to customize them. The thing is, like, you bought a laptop in which you don't have a software like Windows. You don't have a Windows. You bought an empty laptop without any OS. You bought a CD from outside, but you don't know how to install it. What you're going to do?
You're gonna contact a system admin or any outside vendor. You'll go to him. You'll say him like, yeah, I have a Windows CD, can you install it? He'll say like, yeah, I'll charge you 500 rupees. Okay, then you just install it. So that is what as a consultant we are doing. That is what the Infosys, the Tata Consultancy Services, and your Accenture, your what do you call Capgemini, all these companies are doing, because they are doing consulting. They will customize the software, for you. So the people who are in this class, and as well as me, you are going to become a SAP consultant. What you are going to do? You're not going to create any software here. Do you remember? Your software is already there. You are going to customize it according to the needs of the customer. Remember this. Okay. So why I have taken this old procurement cycle as an example means, in order to create all these documents, your system should have configured values for material for a vendor. If a company supplies from thousands of vendors, for all those thousands of vendors, you need to have a material code, the vendor code in your system. If you are buying thousands of material from outside, so what you need, you should have thousands of material codes in your system. You can't type tube light and you're not getting it as tube light. Remember this. Okay. So that is why the configuration of SAP needed. Now the configuration of SAP starts from enterprise structure. Remember this. This is our first topic which you are going to do practical in your SAP system. What is enterprise structure? So why enterprise structure is needed? As I told you, I wanted to create a purchase order. Okay, that's fine. As I told you, in a purchase order, I need a supplier. I need a material. In order to configure supplier, material, all this is called as the master data. That is our next topic. Okay. Count me the topics, the topics which I'm counting now. These are the upcoming topics. These are the things which you have to configure as a SAP consultant. First thing, when you enter in any project of SAP, what you will do is like you have to configure. If you are choosing any one project, what you will do for 1 month, there will be stages of project preparation will be done in the first stage. That means in that preparation, what will happen is there will be series of workshops will be conducted with the client, and there we will gather the requirements, what actually the client needs, how he wanted us to configure this SAP. So you'll go gather all the requirements. That is your first stage. In the next stage, what you're going to do, you're going to start configuring. How you're going to start configuring? From where you'll start? From creating an enterprise structure. What is an enterprise structure? As I told you, what now you see, enterprise actually defines various levels in an organization. What are these levels? These levels are placed according to some hierarchy. What kind of hierarchy it is? Each level has some specific functionality associated with it, which is which in a combined way describes the working of an organization. Now I'll show you how an enterprise structure looks. This is a right side picture. If you can see, the topmost is a client. SAP will call it as a client. In the below to the client, always you'll find a company code. Below to the company code, you'll always be having plants, and below to the plants, you will always be having storage location. Sir, give me an example which can suit this diagram. Means I'll give you an example. No, note it down. The client. See, Tata Group has came to me and said like, please configure SAP for us. We are going to pay you this much. Okay, I accepted. So now I have to create an enterprise structure for Tata Group. Tata Group is not a company, it's a group, it's a client. So we will call Tata Group as a client now. So the first step, what I'm going to do is in SAP, a client will be generated. A client is a 3 code designation, 3-digit designation you're giving. Like I told you, when you install SAP, you will find a client here. See, now this is your SAP screen. So what I'm going to do is, yeah, let me minimize this and open SAP for you. I can just flip it here. One second. Yeah. So if you can see my screen now, I'm showing you SAP now. Let me just let me share my screen again. Sorry. So yeah, now you see. So this is your SAP screen.
So I'm clicking on this ESP 6. Okay, so when you install SAP, you'll find this one. Now now I'm entering into the SAP. Here you see like the client 800. This is a 3-digit code. I'm not writing here as a practice client. Actually 800 is designated to the practice client. Okay, so like this for Tata Group, I can create like a 100 or 200 or 300 or 400. I will give a 3-digit designation for the Tata Group to identify them in my system. कितना हार्ड होता है? It's not like, sir, Classes online. if I नहीं, give मैं 300 for the Java Tata Group, apps can't I use the 300 for any other group? No, you can use. Every group will be having their specific data in the system. It's not like, if you're using 300 number there means you can't use 300 for any other company. Okay, it's not like that. So now you can see here, this is your SAP screen. This is a client of 800. So this kind of a screen you can see whenever you log in SAP. This is 800 indicates your practice client. But so if you are doing a project for Tata will be having a client. Client will be created. You'll type it as 100 if it is a no code for the 100 for the Tata. If they say no, it's 120, so it is 120. Same similar number तीन भी लिखना है, type sir. 300 here, and you will be typing your username here and your password here. Now you'll be logging in. Okay, so this is the thing. So now so let me minimize this. Okay, now we are coming back to the presentation. Yeah, can you able to see my screen? Yes. No, Not at all. Now No. is it fine now? Can you able to see my screen? Yeah. Yes, we can. Okay. Now we can. So this is our SAP cycle. Let me increase the volume. I can't able to hear you properly. Okay, that's good. So now this is your organization level in a procurement process. As I told you, the topmost level always will be a client. The second is a company code. The third is a plant, and the fourth is a storage location, and the last one is your purchase organization or purchasing group. Okay, what is actually a client? As I told you, I'm taking an example of the Tata Group. You can take any example, right? So I'm taking an example of the Tata Group to explain you briefly, because Tata products are everywhere. It is if I take Tata Group as the best example, you can understand SAP very well. So now the client for Tata Group has reached him and said like, yeah, please can you configure SAP for us? So now the first thing what I'm going to do is I have to create a client for them. I have to create a client code, three-digit code I have to create. So for Tata Group, I have created a client now. So Tata Group consists of so many companies. What are those companies? Can you mention the companies Tata Group is owning? Land and buildings. ITC. Tata Steel, Tata Steel, Yes. Tata Projects you are having. Tata Consulting. Tata Motors. Tata Motors, Tata Motors, Motors, Tata Water. Tata Consulting Services. Tata Water is there. Tata Salt is Tata there. Salt. There are so many companies were there under the Tata Group. Tata So, Sky. all these companies under the Tata Group, I will call each of them as a company. I will give them a company code. Company code will be a 4-digit code, remember, like Tata, TATA. So in company, what I'll do, see, I'll take example of this. Tata Projects, one is Tata Projects I'm taking, and the second one is Tata Steel Plant, Tata Steel I'll be taking, and the third one is Tata Water. Okay. So the first one to identify in SAP, what I'm giving them as company code means 4-digit code. It always be. It can be alphanumeric. So how you can give them is TA, Tata Projects, TA PR I can give, or PR01 projects. PR means projects here 01. Like this, it will be given. sir 3-digit codes बोले ना sir अभी? Tata Consultancy Services. क्या बोले? 3-digit codes रख सकते बोले ना sir खाली आप? 3-digit कोड क्लाइंट के लिए है. टाटा ग्रुप को हम क्लाइंट बोलेंगे. टाटा Okay. ग्रुप बोलेंगे. टाटा ग्रुप बोले सबके ऊपर की बॉडी जिसके अंदर टाटा प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, टाटा स्टील भी आता है, जो सीईओ रहता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठ के रहते, वो I have क्लाइंट, one question here वो हेड ऑफिस, related to client. दैट इज ए क्लाइंट. ओके I have one question related to client. ओके This client code number. one second. Can- let me take an headphones. I can't able to hear you properly. Headphones. One second.
My question is, can't we give client code as alpha? One second, let me connect my headset first. I can able to answer. I can able to hear you. Yeah. Yeah, my question is related to this client code. Okay. Can't we give alpha like how we are giving alpha numeric for company Alpha code? numeric you can't give in client. Simply, it should be a numeric one always. Client should be like 100, 200, 300, 400. Like this only you'll be giving. Okay. So it's not like, we can't use 100. If I'm using Tata for Tata Group, I'm using 100 means I can't use that 100 for Hyundai Group. Every company they'll be having their own database. In the database the data will be stored. It's not like the client number 100 will be accessed by Hyundai. They can't. This is for your reference, for that company internal reference. So the employees, to identify employees will be knowing always for our Tata Group. The client will be 100. They'll be knowing it. It's not like the outside people will be knowing like the client is 100. Okay. So this is the thing. It is always a numeric one. So the next one is your company code. So next one is your company code. As I told you, Tata Group means your CEO and the board of directors, wherever they are sitting, the head office, you'll call it as the board of directors. Okay. So that is your client. So below to that, it will be a companies, there will be so many companies are there. TCS is a company. You can't say TCS is a plant. Okay. It's not a plant. It's a company. TCS is a company, independent company. And then you will be having Tata Steel. That is also a company. Tata Projects is a company. So for TCS, you have to create a company code. For Tata Projects, you have to create a company to identify. Okay. So for TCS, I can use a TCS1 or TC01 like this. For Tata Projects, PR01, PR02, PR03 like this. It can be alphanumeric. Okay, remember this. I'll configure one and you can see that example. No issues. Okay. So then the next one is a plant. Every company code, every company will be having plants. Like if Tata Motors is there in your Hyderabad, how many plants Tata Motors of Hyderabad is having? Different plants. They'll be having different branches. In Himayat Nagar you'll find a branch, in Dilsukh Nagar you'll find a branch, in LB Nagar you'll find a branch, in Gachibowli you'll find a branch. So all these branches will be called as your plants or the manufacturing units. If they're manufacturing these cars in any particular location outside of your city, you'll be calling it as plant. If they're having two plants, two manufacturing locations in Hyderabad, if you are calling them as two plants, one plant if they are if it is in this Kompally side, the other plant is in Shamshabad side, there will be two plants. So you'll call them as independent plants and you'll be naming them independently. One plant, if it is in Kompally, for that plant, I'll be giving it as Hyderabad. If it is in Hyderabad, then HY01 I can give for my understanding. HY02 I will give for Shamshabad location, so that the people can understand that not all the people outside of the Tata Group, inside of the Tata Group can know that for the Hyderabad plant one, it will be HY01. For the Shamshabad plant, it will be HY02. These values, which you configured, that will be discussed with your client and it will be shared across all the departments. Then they will be knowing that this is the plant code for our Hyderabad location. And next is a storage location. After manufacturing, they need to store all these cars somewhere, like a warehouse. Okay. So that warehouse is a location, where all your stocks can be kept. It may be your car, it may be, the spare parts. Okay. So it may be the oil, it may be the, it may be all the lubricants, which you'll use for the service, because your Tata Motors will be having service showrooms in Hyderabad. The service showrooms required so many kind of materials, like, if they wanted to do service, they need spare parts, they need oil, they need all the lubricants and everything. All this can be stored at one location. That I'll call it as storage location. Sometimes the plant and storage location can be at one location, but you have to define them separately. So remember this. The last one is your purchase organization or purchasing group. What is a purchase organization? There will be a purchase organization. See, in Hyderabad,
if they are having 10 branches, okay, I'll call them all the 10 branches as a plants. All these 10 branches can be have their own purchase organization. Remember, every plant purchasing organization means what? There will be a group of people. There will be a manager, there will be a senior executive, there will be an executive, there will be a group, there will be an office of the purchase. Okay, so that purchasing office, if each plant is having a purchase organization, then I will call it as a plant specific purchase organization. That means if Hayat Nagar is having a showroom, that showroom is having a purchase office or a purchase organization, okay, that can only procure things or the raw materials or the lubricants or the spare parts for only that particular showroom, then I'll call it as that plant specific purchase organization. Again, purchase organization will be again the 4-digit alphanumeric code. I can call it as, it is in Hayat Nagar, I can call it as HY01. Or if you want to remember the purchase organization means PR01 or PO01 or PC01, whatever the name you can give. It's not like, SAP has restricted you to use, this kind of codes, you can use anything here. So based on the client's requirement, you have to tell them your client, right, sir, for your purchase organization, which is Hayat Nagar, I'm giving you this code. Is it okay? If he says, yeah, instead of PR01, please can you give TP01 like this, Tata Purchasing Group 01 like this. So it will be based on the requirement. Okay. So the every purchase organization, I told you, if each plant and each showroom is having a specific purchase organization, I'll call it as a plant specific purchase organization. Remember this. In interviewer will definitely ask you this question. Every interviewer, whatever the interviews when I have faced when I completed my SAP course, every interviewer asked me this question related to purchase organization. What is a plant specific purchase organization? What actually it will do? What is a cross plant purchase organization? In a cross plant purchase organization means there will be a common purchase organization for all the plants in your Hyderabad. It may be in Hayat Nagar, it may be in Gachibowli, it may be in LB Nagar, anywhere, it may be in any location. There will be only one purchase organization which will be located in the center of the Hyderabad, maybe in Amirpet, maybe in Lakdikapul, maybe in Mehdipatnam, maybe in Toli Chowki, who will do purchasing activity for all your plants. Remember this. This is called as cross plant purchase organization, means company specific purchase organization. That means that purchase organization will be assigned to a company code. So if a company is having number of plants, that purchase organization can procure anything for all those plants. Okay. So if you want to make that purchase organization specific to only one plant, you can't assign that purchase organization to company code. You have to assign that particularly to a plant only. Only Hayat Nagar plant will be having their purchase organization, or this Nagar will be having their own purchase organization. Like this. Okay. It may happen. It may depend from the business. Okay. So purchasing group, the last thing which comes in an enterprise structure, sorry, is a purchasing group. What is a purchasing group? Purchasing group will always comes below to the purchase organization. As I told you, I'll be having a centralized purchase organization in center of the Hyderabad that can be used to procure the goods or the services for all of your plants in Hyderabad. But this purchase organization, what they will do is they'll keep some employees, in each of the plant. What they will do, they'll report to this central purchase organization. Like, like we will be having a HR department in head office. If you can see, every company will be having a head office. The head office having a HR department. And then in your site, in your company, you will be having some HR departments. Okay. So all these HR departments will be linked to the head of HR department, which is in the head office. Okay. So for all these, HR department will be managed by that head of the group, which is in head office, that HR department. So like this, all these purchasing groups, they may be sitting in the each and every plant, or they may be sitting in only one location. What I will do is like a purchase organization may contain number of employees. Like it can be a directors, number of directors will be there, number of managers will be there, number of executives will be there. So what I will do is like
I will divide them. So I'm having a single office in center of Hyderabad that is called as a centralized purchase organization. If that purchase organization can procure petals for all the plants, then what I'm gonna do is like I will be assigning some group. I'll be dividing my staff into 10 groups. Why I'm dividing? Because I'll be having 10 plants in Hyderabad. So in order to do the purchasing in an efficient way, what I will do, I will divide them in different groups. That might happen. Sometimes what will happen to all these 10 plants, I can divide all these 10 plants into 5 number of groups, but I can't assign them into each each location. What I will do, I'll say like I'll create 5 purchasing groups. I'll say one purchasing group is always buys paint for the cars, whatever the cars they're manufacturing. The paint will be only purchased by this purchasing group. That group may consist of 1, 2, 3, 4, 5, 10, hundreds of people you can maintain in that purchasing group. Okay, that group always only do procurement for paint. Okay, next I'll maintain another group. That group will always buy spare parts. They won't be looking after this oils or maybe the paint which they required. Spare parts only they will be having. Other group I will maintain. They'll always look after service kind of activities. Other purchasing group I will maintain. That purchasing group always buys office supplies. Office supplies means every office needed some office supplies like a printer, like a computer. They'll be needing chairs, they'll be needing tables, they'll be needing sofas, they'll be needing a water fridge, they'll be needing a water filter also. So these requirements will be fulfilled by that purchasing group. So this is all your enterprise structure. Okay, so now, so what we are going to do is now, as I shown you the example of a client, I have shown you the client how it looks actually. So whenever you log on to SAP GUI, the screen appears. See the client with a 3-digit numeric key that's define the client, which represents a corporate group. I told Tata Group as a client. It's a corporate group. I'll create corporate. I can't write there as a corporate group or Tata Group or Hyundai Group. I can't write it there. I can't write it as Aditya Birla Group. I can't write it as Reliance Group. I have to give them a code, 3-digit code. If Reliance Group wants a code, I can give them 100. That kind of a code you're going to configure here. Okay, that is your client. So the company code, as I told you, a client may consist of number of company codes, or a client always consists of maybe one company. Okay, some will be there. If I call Hyundai, Hyundai only manufactures cars. They won't be another business. If I go to Reliance, they'll be having so many businesses. If I go to Swiggy, they'll be having so much of businesses. Swiggy only do deliveries. If you go to Uber, Uber was only in the business where they used to provide cars. Like you can book a cab service, cab supply company. It's an Uber. But nowadays, what they used to do sometimes they started with Uber Eats. They used to deliver food packets also. Now in Uber app, if you open Uber app, you can do a lot of things. You can not only the car, you can book a bike also. If you want to, you can use that Uber as a shipping partner. Like a shipping partner means if you want to, transfer something from one location to other location. Like if somebody has visited your home and that person has forgotten something at your home, if you want to send that material to that particular person which is in different location, like your brother from LB Nagar has visited you, where you're staying in Gachibowli. So then he forgot something and you wanted to send him. So what you'll do, you'll open Uber app and there will be a tab called, if you want to move this, what you called any material, you'll be having there the pickup or the drop location you have to give, and that product will be delivered to that particular location. So this kind of businesses, they'll be having. So each businesses, I call each business under the corporate group as a company. Like Reliance is having electronics group, Reliance Digital is having. I can call Reliance Digital as a company. Reliance Oil is there. Reliance Oil as a company. Reliance Network, Jio is there. Jio is a company, but they are all under a Reliance group. That corporate group, I'll call it as a client. Okay, the client may consist of number of company codes, but company code, the client should be a numeric key, but company code
should not be, you can use a numeric code and it should be alphanumeric. It will be alphanumeric always. Okay. So the next one is the plant. As I told you, the plant can always be as I told you, the plant can be a production unit. It may be a warehouse. It may be a regional sales office, whatever you call. I have taken a showroom as an example. It's actually a showroom. What will happen in a showroom? You are going to buy a car. I can call it as a regional sales office also. So that regional sales office can be your plant also. So plant can be anything. Okay. So below to the company code, there will always be a plant. So below to the plant, what will happen? You'll be having a storage location where you are going to store your materials. It may be raw materials. It may be your cars. It may be your tires. Anything. As I told you, you'll be purchasing organization. So the purchase organization. When it comes to purchase organization, we discussed about the plant specific purchase organization, and the second one is a cross plant purchase organization. Can anybody tell me what is cross plant purchase organization? Anybody? Like It is Huda, you a said. place where the complete units of, for example, like the complete sites will be controlled with one centralized site. Like all the plants, cross plant indicates what, that purchase organization, will procure the things for all the plants of India or all the plants of Hyderabad. I can make it a specific. I can make Pune and Mumbai, all the plants in Pune and Mumbai. I can put only one purchase organization. Okay, for Telangana and Andhra, if you can see the networks, Idea, Airtel, and everybody, so they haven't divided Telangana and Andhra till now. If you're going to recharge, your mobile network, you have to always pick Andhra and Telangana. Andhra Pradesh you have to pick. It's not separated. So that means what? They're having a common group. So that is what, a cross plant purchase organization means, I may having different plants, I'll be having only one purchase organization, but you can procure for all the plants. Plant specific means each plant will be having the specific purchase organizations. This purchase organization is not going to interfere with other plant activities. Remember this. And the last one, this is also the important one, the cross company code purchase organization. What is this? Can anybody explain me what is this cross company code? Because the name itself says, you can easily understand. What is cross company code purchase organization? Can anybody? सर एक ही कंपनी कोड रहता है सबको? नहीं कोई और? क्रॉस प्लांट बोले तो क्या बोला मैं? जितने भी प्लांट्स आपके पास है वो हर प्लांट को जो है उन्हें परचेज कर सकता। क्रॉस कंपनी कोड का मतलब क्या है? जितने भी कंपनीज है, लाइक मैंने बोला टाटा ग्रुप के अंदर कितने कंपनीज है? टाटा स्टील भी है, टाटा एविएशन है, टाटा मोटर्स है, टाटा साल्ट है, टाटा वाटर है, इतने सारे है। तो टाटा स्टील का एक अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन था। Plant level we can assign. ओके, क्रॉस कंपनी कोड मतलब पूरे कंपनीज को भी एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहता है। लाइक कॉर्पोरेट ग्रुप में से बोला था आपको, क्लाइंट ऊपर रहता, क्लाइंट के नीचे कंपनी रहता, हमेशा कंपनी के नीचे प्लांट्स रहते। प्लांट्स को मैं क्या कह रहा हूँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन मिला दिया था पहले, तो उसके क्या बोला मैं, प्लांट स्पेसिफिक बोला, प्लांट के लेवल पे मेंटेन किया। तो मैं देखो यहाँ पे आई विल गो टू द डायग्राम अगेन। पहले जो डायग्राम मैंने बताया देखिए, या क्लाइंट देखिए ऊपर, नीचे से आ रहा हूँ मैं, प्लांट के पास देखिए आप, अगर ये प्लांट के बाजू में एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना दिया मैं, अगर बोला कि ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लांट को परचेज करेगा, एक ही प्लांट को, सो प्लांट स्पेसिफिक हो गया। उसको लेके आके मैंने कंपनी कोड को लगा दिया, तो ये कंपनी के नीचे कितने ही प्लांट्स हो सकते, 10 हो सकते, 15 हो सकते, 20 हो सकते। सो वो क्या कर सकता है उन्हें, सो जितने भी प्लांट्स है कंपनी के अंदर है उसको परचेज कर सकता है, उसको मैं क्रॉस प्लांट बोलूंगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, एक अब कंपनी कोड मतलब क्या है, एक एक ग्रुप को एक मतलब एक टाटा स्टील को मैं एक कंपनी कोड बोला था, कंपनी बोला था, टाटा मोटर्स को एक कंपनी बोला था। तो इसके ऊपर भी अगर एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप टाटा स्टील्स को भी खरीद रहा, टाटा मोटर्स को भी खरीद रहा चीज़ा, और टाटा जो है नमक टाटा साल्ट को भी खरीद रहा, टाटा वाटर को भी खरीद रहा, देन मैं उसको क्या बोलूंगा, क्रॉस कंपनी कोड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे पे इंटरव्यू क्वेश्चन अगर गूगल में मारेंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्वेश्चंस ऑन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मारेंगे, देयर विल ऑलवेज बी 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछेगा डेफिनेटली, 3 में से पूछेगा आपको कि क्रॉस प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन को और क्रॉस कंपनी कोड परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंस क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, सर क्रॉस कंपनी कोड परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता, ये क्लाइंट के अंदर कितने कंपनीज है कि वो सब कंपनीज के लिए उन्हें परचेज करता, उसके नीचे कितने भी प्लांट्स रहने दो, कितने भी क्या बोलते हैं स्टोरेज, कितने भी क्या बोलते हैं स्टोरेज लोकेशंस रहने दो। अगर मैं उन लोगों को बोलूं diagrams for this? क्या डायग्राम यू वांट,
Yes, I can show you the diagram also. तो यहाँ पे देखिए, इग्नोर द सेकंड डायग्राम है, सेम डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पे ऊपर एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन में दिखा दो, कंपनी कोड इधर बाजू खड़े हुआ है, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन इधर है, उसके नीचे एक प्लांट है, प्लांट 1 है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 प्लांट 1, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 2 प्लांट 2। मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 को प्लांट 2 को कुछ भी रिलेशन नहीं है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 2 को प्लांट 1 को रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे किस क्या बोलूंगा मैं इस सिनेरियो को, Plant specific. प्लांट स्पेसिफिक क्या होता, या मैं नीचे लिखा देखिए, मैं ये परचेज ऑर्ग इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल फॉर जस्ट वन प्लांट, एक ही प्लांट। मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 को क्या, उसको मतलब नहीं है कि प्लांट 2 वाला क्या खरीदना चाह रहा, उसको जरूरत नहीं है, तेरा तो देख ले बताओ ना, तो प्लांट 1 वाला खरीद लेता। सिंपल एग्जांपल क्या है बोले तो, शागोस का एग्जांपल लेता हूँ, शागोस शालीबंडा में भी है, शागोस टोली चौकी में भी है, शागोस गच्चीबोली में भी है। शागोस टोली चौकी शालीबंडा गच्चीबोली तीनों को मिला के एक ही बंदा चिकन सप्लाई कर सकता। वो चिकन सप्लाई करने के लिए मैं एक परचेजिंग ग्रुप को, मतलब ये तीनों शागोस को मिला के एक छोटी ऑफिस रख लिया मैं लकड़ी का पुल में, समझिए। वो ऑफिस में एक बंदा परचेज वाला बंदा है या परचेजिंग ग्रुप है, अगर वो परचेजिंग ग्रुप चिकन सप्लाई 3 मिनों को मिला के कर दी, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, समझोगे 3 प्लांट्स में समझेगा, क्रॉस प्लांट बोलूंगा इसको। मतलब 3 प्लांट्स को भी भेज दे रहा हूँ ना चिकन, 3 प्लांट्स को भी खरीद रहा। शालीबंडा वाला बोलता नहीं भाई मैं क्रॉस प्लांट बोलता, तीनों प्लांट्स के लिए एक ही बंदा खरीद रहा हूँ बैठ के, हेड ऑफिस में बैठ के। नहीं, अगर शालीबंडा वाले बोले चलो भाई मेरा चिकन मैं खरीद लेता हूँ, मेरे को शालीबंडा में सस्ता चिकन है बोले, तो क्या बोलेंगे उसको, प्लांट स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक बोलेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। गच्चीबोली वाला बोलता अरे भाई मेरा चिकन मैं खरीदता हूँ, शालीबंडा वाला तू शालीबंडा में खरीद ले, टोली चौकी वाला तो टोली चौकी में खरीद ले, इधर से उधर ये मूवमेंट आने होते, कांका वाले वहाँ खरीद लो बोल के बोल दिए। तो क्या होता बोले तो, मैं क्या कर लेता हूँ, शालीबंडा के ब्रांच में एक बंदे को रख लेता हूँ मैं, एक परचेज वाले को, उन्हें हमेशा क्या करता काम, उसका चिकन सप्लाई देख लेना बैठ के, एक सुपरवाइजर समझो, सुपरवाइजर समझे। वो सुपरवाइजर काम क्या रहता है, अरे भाई बाजू खरीद में, वो शालीबंडा के खरीद में क्या क्या चिकन दुकान है कि जाके वहां से बोलता भाई देखो हम कितना चिकन होना सप्लाई करते रहो तुम एवरीडे, तो उसका काम रहता। तो उसको मैं बोलूंगा एक परचेजिंग ग्रुप बोलूंगा, या परचेजिंग पर्सन बोलूंगा, या परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कब बोलूंगा। वो एक ही बंदा नहीं रहता, कभी कभी 10 बंदे रहते वो काम करने के लिए। अगर वही शागोज एक 5 स्टार ग्रुप्स है जिसके बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे ग्रुप्स है, तो वहाँ पे मैं एक ही बंदे पर डिपेंड रहूंगा, मैं एक 10 बंदों को रखूंगा, उसमें एक बंदे को मैनेजर बोलता हूँ, एक बंदे को टीम लीडर बोलता हूँ, एक बंदे को क्या बोलता हूँ मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलता हूँ, एक बंदे को जूनियर एग्जीक्यूटिव बोलता हूँ, डिपेंड्स ऑन उन लोगों की एक्सपीरियंस हिसाब से मैं बनाऊंगा। वो सब लोगों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा। याद रखिए, ये हो गया आपका प्लांट स्पेसिफिक हो गया। उसके सेकंड डायग्राम छोड़ दीजिए, वो भी सेम डायग्राम है, कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड वाला डायग्राम पे आइए नीचे, उसके नीचे फर्स्ट वाले के नीचे जो है ना, ये देखिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऊपर एक ही है, देखिए नीचे इधर प्लांट 1 है प्लांट 2 है, प्लांट 1 के लिए 19 खरीदता, प्लांट 2 के लिए 19 खरीदता, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस प्लांट, Cross plant. Cross plant purchasing. Exactly. This is called as cross plant purchase organization. So now अब देखिए थर्ड सिनेरियो, नीचे राइट साइड में फोर्थ डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, उसके नीचे 3 प्लांट्स है, उसके नीचे कंपनी कोड अलग अलग, कंपनी कोड अलग बोले तो क्या है, पहले क्या होता था मालूम, यहाँ पे जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन था, ये थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम में 2 प्लांटा है ना, ये 2 प्लांटा एक किस कंपनी के, मतलब ये प्लांटा दोनों किसके थे, पहले वो टाटा प्रोजेक्ट्स वाले के थे या टाटा स्टील वाले के 2 थे, ओके। उसके ऊपर के 2 भी क्या है, अलग अलग थे, ये भी टाटा वाले का था, ये भी टाटा वाले का था, टाटा स्टील वाले का, टाटा स्टील समझिए, टाटा स्टील एग्जांपल लेंगे, प्लांट 1 टाटा स्टील वाले का था डायग्राम में, प्लांट 2 भी टाटा स्टील वाले का था, तो टाटा स्टील वाले के लिए खरीदता रहा इन्हें, तो इसके क्या बोलेंगे हम, क्रॉस प्लांट बोल रहे थे। मगर यहाँ पे क्या होता है फोर्थ सिनेरियो में, क्रॉस कंपनी कोड बोला ना मैं, तो देखिए प्लांट 1 वाले का कंपनी कोड अलग है, कंपनी अलग है, मतलब इन्हें प्लांट 1 किसका है, यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स का है, प्लांट 2 किसका है, टाटा स्टील्स का है, प्लांट 3 टाटा वाटर का है, समझिए टाटा वाटर का अलग प्लांट है। तो ये 3 प्लांटों के लिए भी अगर एक ही बंदा खरीद रहा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लाइंट क्रॉस कंपनी कोड purchasing organization. क्रॉस कंपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा। मतलब पूरे कंपनीज के लिए यूनिट ले रहा भाई, उन्हें टाटा प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिट खरीद रहा, टाटा स्टील्स के लिए यूनिट खरीद रहा, टाटा मोटर्स के लिए खरीद रहा। पहले क्या होता था, क्रॉस प्लांट कब बोलूंगा मैं, टाटा स्टील, एक टाटा स्टील अलग है, टाटा प्रोजेक्ट्स अलग है, टाटा वाटर अलग है, टाटा स्टील के नीचे जो जो जितने प्लांट्स थे, तो प्लांट्स पूरों को मिला के एक बंदा खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको क्रॉस प्लांट बोल रहा था। एक एक प्लांट को एक एक बंदा कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोल रहा था, इंडिविजुअल्स प्लांट स्पेसिफिक बोल रहा था मैं। अब समझो कि वो प्लांट्स को, इसके टाटा स्टील वाले जितने प्लांट्स है वो सब प्लांट्स को, टाटा मोटर्स के जितने प्लांट्स है उसके प्लांट्स को, टाटा वाटर जितने प्लांट्स को, ये सबको मिला के एक ही बंदा है ऊपर जो परचेजिंग कर रहा, पूरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहा, उन्हें बड़े ग्रुप्स मेंटेन कर रहा, तो उसको बोलेंगे हम कंपनी स्पेसिफिक, और क्रॉस कंपनी बोल सकते हैं इजीली, ठीक है। क्रॉस कंपनी, अच्छा एक सिनेरियो ये भी बन सकता है ना कि मतलब
परचेसिंग एक प्लांट है, परचेसिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है या हाँ, एक टीम है, हम्म। वो अलग अलग कंपनी को मतलब के लिए सामान खरीदे, जैसा कि रिलायंस भी है, टाटा भी है और बिरला भी है, तो ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। परचेसिंग देखो, एक कई करता हूँ ना, एक ऐसा बंदा है जहाँ पे जो है पूरे कंपनी के लिए परचेसिंग करता, नहीं कर सकता वैसा, ऐसा नहीं नहीं कोई एग्जांपल समझे मतलब आगे एक मेरे को? एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई देखिए वो भी। देखिए, समझे, मैं एग्जांपल बोलता हूँ। स्पेसिफिक परचेस में आ जाता हो। शागोज एक ग्रुप है और पिस्ता हाउस एक अलग अलग ग्रुप है। शागोज पिस्ता हाउस को मिला के एक ही बंदा है, एक ही कैशियर नहीं बन सकता, या नहीं तो एक बंदा ऐसा है कि दोनों दोनों के लिए जो है खरीदारी नहीं कर सकता। सप्लायर एक बंदा हो सकता। टाटा क्या बोलते तुम्हारे पिस्ता हाउस को भी जो है, क्या बोलते हैं, पिस्ता हाउस को भी एक ही बंदा चिकन सप्लाई कर सकता और तुम्हारे शागोज को सप्लाई कर सकता, मगर खरीदने वाला कौन है? काउंटर पे कैशियर रहता ना, वैसे और एक बंदा रहता जो आपको खर्च ये जो है परचेसिंग करते रहता। वो परचेसिंग शागोस के लिए, शागोस का परचेसिंग वाला क्या को खरीदेगा पिस्ता हाउस के चिकन? तो उसको मतलब नहीं, उन्होंने निकाल देता ना भाई, तो दो जगह जॉब करा बोले तो उसको मतलब ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट परचेज ऑर्गेनाइजेशन कभी भी क्या होता, क्लाइंट स्पेसिफिक रहता है इसके अंदर, एसएपी के अंदर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे क्लाइंट के अंदर जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन खरीद करता हूँ, बोल तो एसएपी में पॉसिबल नहीं है। वी कांट डू इट इन एसएपी। सो अगर समझिए कि भाई, अगर बोल सकते कि पिस्ता हाउस भी एक ही ग्रुप का है, शागोस भी एक ही ग्रुप का है, उसके ऊपर एक ही ओवैसी खानदान का समझेंगे एग्जाम्पल, ओवैसी ग्रुप का चाहिए समझेंगे, दारुसलाम ग्रुप का शागोस है, पिस्ता हाउस है। तो मैं क्या करता हूँ, शागोस को एक प्लांट बोलता हूँ, शागोस की कंपनी बोलता हूँ मैं, और क्या बोलते हैं पिस्ता हाउस की कंपनी बोलता हूँ। ये दो कंपनियों को मिला के ऊपर ओनर एक ही है जो ओवैसी है, समझे, ओवैसी ग्रुप से। तो ओवैसी ग्रुप्स को मैं क्लाइंट बोलूंगा। ओवैसी ग्रुप्स के नीचे जो डेक्कन कॉलेज है उसके कंपनी बोलूंगा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कॉलेज एक कंपनी बोलूंगा। ओवैसी ग्रुप्स के नीचे जो हॉस्पिटल्स है उसकी ग्रुप बोलूंगा। उसके नीचे जो है ये पिस्ता हाउस है, पिस्ता हाउस के ग्रुप को मैं एक कंपनी बोलूंगा और शागोस के ग्रुप की कंपनी बोलूंगा। तो जब मैं कर सकता हूँ कि पिस्ता हाउस के लिए भी जो है ओवैसी के ऑफिस में बैठ के एक बंदा है जो परचेजिंग कर रहा चार, और सबके लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए परचेजिंग उन्हें कर रहा, जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स के लिए उन्हें खरीद कर रहा, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, जो ये पिस्ता हाउस के लिए भी खर्च कर रहा, सब कर रहा। तो ये पूरे कंपनी के लिए भी कर रहा, तो मैं क्रॉस कंपनी कोड बोलूंगा उसको। अगर ओवैसी क्या बोला, अरे भाई हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल के सामान खरीद लो, उसको एक अलग परचेजिंग ग्रुप डाल देंगे, तो उसको ये बोलूंगा कि हॉस्पिटल्स का ग्रुप को मैं कंपनी बोला था ना, वो कंपनी स्पेसिफिक हो गया। कंपनी स्पेसिफिक मतलब क्या है, वो हॉस्पिटल्स कितने हैं फिर, हॉस्पिटल्स के लिए मैं ये कंपनी कोड बना दिया ना, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल्स कितने हैं हमारे हॉस्पिटल्स ग्रुप में, ओवैसी के ऐसा हॉस्पिटल चारमीनार में एक है, ओवैसी हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल है इसके। तो दो हॉस्पिटल क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स हो सकते हैं मेरे। तो दो प्लांट्स के लिए भी एक ही बंदा खरीद रहा, तो मैं बोलूंगा वो दो प्लांट्स को क्रॉस प्लांट कंपनी को बोलूंगा। अगर दो भी प्लांट्स को अलग अलग लोग हैं जो खरीदने वाले, खरीदारी करने वाले बोले, तो उनको बोलूंगा मैं इंडिविजुअल प्लांट स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा। ये एग्जांपल है। तो क्लियर कट है भाई। देखिए फर्स्ट वाला जो सिनेरियो था वो नाम को देख के पहचान सकते हैं आप। सिंपली क्या है, फर्स्ट वाला प्लांट स्पेसिफिक है, मतलब ईच प्लांट को उन्हें स्पेसिफिकली परचेज कर लेता, दूसरे प्लांट में उन्हें हाथ नहीं डालता। सो सेकेंड वाला क्या है, क्रॉस प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे प्लांट्स की खरीदारी कर सकता उन्हें। थर्ड वाला है कंपनी स्पेसिफिक, या जो है क्रॉस कंपनी परचेज ऑर्डर बोल सकते हैं। क्रॉस कंपनी मतलब क्या है, जितने भी कंपनी से मेरे अंडर उसके नीचे कितने प्लांट्स हैं सबको मैं खरीद रहा हूँ, तो हो गया क्रॉस कंपनी हो गया। ये सिनेरियो भी याद रखिए। आज का हमारा टोटल डिस्कशन यही चीज़ पे है, ठीक है। टाइम क्या हुआ अभी हमारा 9:47। सो अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सीधा सीधा लेके जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना है एसएपी में दिखाना है, ठीक है। वो एसएपी में कैसा करना है वो कल बताऊंगा मैं, राइट। ये डायग्राम देख लीजिए। पहले ऊपर क्या था, टॉप में क्लाइंट था, क्लाइंट के नीचे हमेशा कंपनी कोड होती। टाटा का एग्जाम्पल ले लो, क्लाइंट ऊपर बोलो टाटा ग्रुप है, इसके नीचे दो कंपनी कोड है, दो बोलो तो एक टाटा स्टील है, एक टाटा मोटर है, और एक भी रख ले सकता हूँ मैं टाटा वाटर, और एक भी रख ले सकता हूँ टाटा स्टील। तो ये पूरे कंपनीज हो गए। एक कंपनी के नीचे दो प्लांट भी हो सकते हैं, एक कंपनी से एक प्लांट भी हो सकता है। ये चीज समझिए आप, ये डायग्राम इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी के अंदर एक प्लांट है ना, कंडीशन कुछ भी नहीं है, समझे। एक कंपनी बोले तो क्या है, बोलिए टाटा ग्रुप की एक कंपनी बोलिए, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स के कितने भी शोरूम्स हो सकते हैं, उसकी मर्जी भाई। 70 शोरूम खोल लिया उन्होंने हैदराबाद में, समझिए तेलंगाना के अंदर, तो 71 भी खोल सकता है उन्हें, उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी कर सकता उन्हें, तो और एक प्लांट बनाना पड़ता है इसके लिए आपको। सर एक डाउट है जी कंपनी कोड के अंदर कंपनी प्लांट एग्जांपल टाटा ग्रुप है, टाटा हाँ, ग्रुप एक क्लाइंट है, उसके अंदर कंपनी है टाटा कंपनी मोटर्स। टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स के जो है ना शोरूम्स है, इन केस तो लाइक हैदराबाद में 50 शोरूम्स है, 50 तो शोरूम्स 50 है। प्लांट्स है, 50 प्लांट्स हो गए। 50 प्लांट्स के लिए अलग अलग स्टोरेज लोकेशन है, या 50 प्लांट्स का स्टोरेज लोकेशन एक ही जगह हो सकता है? एक ही जगह हो सकता है 50 प्लांट्स का, नहीं एक एक प्लांट का एक एक स्टोरेज लोकेशन रहता है, याद रखिए। 100 प्लांट्स का मिला के एक स्टोरेज लोकेशन नहीं हो सकता, एक एक प्लांट का एक एक स्टोरेज लोकेशन रहता। मतलब देखिए आप देखेंगे हर शोरूम को देंगे, शोरूम के पीछे जब क्या कहता स्टोर्स रहते, मतलब कायला रखे हुए रहते, याद रखिए।
तो इसके कारण निकाल के देता। कभी कभी क्या होता बोले तो यहाँ पे स्टॉक नहीं है बोले तो क्या करता, रिक्वेस्ट करके बाजू वाले स्टोर से मंगाता। बाजू वाला स्टोर बोलते वो अलग प्लांट है, वो प्लांट से कार को मंगाना बोलते खाली जाके मैं डाल के आता हूँ बोलते रख के देता हूँ, ऐसा नहीं ला सकते आप। इसके लिए मैं कल आपको बोला एक एसटीओ बनाना पड़ता है, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है भाई। देखो यहाँ पे सिस्टम में क्रिएट करना पड़ता है मेरे को के समझो कि आपको मैं आप जैसा एग्जांपल दिए कि भाई हैदराबाद में बहुत सारे शोरूम्स है, समझो कि एलबी नगर के शोरूम में कार एक टाटा की नई जो नेक्सॉन कार है वो कार के स्टॉक खत्म हो गया, उसको मालूम हो गया हिम्मत नगर में कार है, सीधा फोन करे तो रेबेस्टा होने प्रोसेस है, यहाँ का मैनेजर अलग है वहाँ का मैनेजर अलग है, क्या करना पड़ता है यहाँ से यहाँ की परचेसिंग ग्रुप एक एसटीओ बनाना पड़ता है, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको, परचेज ऑर्डर नहीं बोलते। परचेज ऑर्डर कब बोलते हैं, बाहर से कुछ खरीद रहे हैं आप तो परचेज ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाना पड़ता है कि भाई देखो एलबी नगर यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे को स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में क्या होता बोले तो रिसीविंग प्लांट रहता और क्या बोलते सेंडिंग प्लांट रहता है। सेंडिंग प्लांट कौन सा हो सकता है, हिमायत नगर का प्लांट सेंडिंग प्लांट है, और रिसीविंग प्लांट क्या है इसका है, इसके 2 कोड़ा है ना, 2 कोड़ा डाल देते, डाल देके कितना क्वांटिटी होना, 4 कारा होना 5 होना देख लेके, तो स्टॉक में चेक कर लेते हैं उसके पास 15 कारा है तो 4 मंगाना 4 मंगाते। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करते ही उसको फोन करके बोलते भाई देखो मैं परचेज ऑर्डर रेज कर दिया, एसटीओ रेज कर दिया, आपके सिस्टम में चेक कर लो बोल के चेक कर लेता, एसटीओ आके रहता तो उसको मैनेजर को भेज देता, मैनेजर अप्रूव करता, अप्रूव करने के बाद यहाँ से कारा भेज देते उसको, ये प्रोसेस होता। तो ऐसा नहीं कि जाके मैं जाके सीधा जाके उठा लेके आ सकता हूँ। देखो अब और एक एग्जांपल क्या है, डी मार्ट के एग्जांपल अपन ले रहे थे। डी मार्ट जो आपका पठान चेरू में भी है, डी मार्ट आपका लिंगमपल्ली में भी है, डी मार्ट हर जगह है हैदराबाद के। ये डी मार्ट में प्याज खत्म हो गया बोल के भाग के जाके वो डी मार्ट से प्याज पकड़ लेके नहीं आ सकता, अरे वो हिसाब रहता है उसको, अरे वैसे नहीं ला सकता उन्हें, एसटीओ क्रिएट करना पड़ता, एसटीओ क्रिएट करना पड़ता है, जब भी जो है जाके ला सकता। डॉक्यूमेंटेशन है ना, प्रूफ क्या होता है बोलो, कहीं बोले तो यहाँ का मैनेजर को यहाँ के प्लांट में, अरे देखो 15 प्लांट के ऊपर जो कंपनी हेडक्वार्टर जो लगा है, हेड ऑफिस से बोलते अरे भाई मैं हिमायत नगर को 15 कारा भेजा, क्या करा बोले तो भाई उन्हें आके लेके गया, इन्हें आके लेके गया, बोलते क्या दीवाने बातें कर रहा, प्रूफ क्या है मेरे को बोलता हूँ, उन्हें बोलता मैं नहीं लेके क्यों बोलता नगर वाला, तो क्या करते, तो वी शुड हैव ए प्रूफ। तो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सेक्शन, एवरी ग्रुप, एवरी प्लांट विल बी हैविंग द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एसटीओ। वो एसटीओ का डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा रोल होता है एसटीओ का भी। और एक चीज याद रखिए, मैं जैसे आपको बोला एसएपी के अंदर आप शुरुआत एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से करते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बहुत बड़ा अच्छी टॉपिक है, ओके। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाने के बाद मास्टर डेटा आप बनाते हैं एसएपी के अंदर। मास्टर डेटा किसको बोलते हैं, मटेरियल्स को बनाना, सप्लायर्स को बनाना, एसएपी में बनाए तो उसको मास्टर डेटा बोलते हैं, याद रखिए। और थर्ड स्टेज है प्राइसिंग प्रोसीजर, प्राइसिंग कंडीशन मेंटेन करना, हर ग्रुप को जो है एक अलग अलग प्राइसिंग, हर सप्लायर एक सप्लायर का एक प्राइसिंग है, डीमार्ट वाले का एक प्राइसिंग है, रत्नदीप वाले का एक प्राइसिंग मेंटेन करना, इसकी एक प्रोसेस बोलता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा एसएपी के अंदर जो जितने प्रोसेस है ना, आपको जरूरी नहीं कि हर प्रोसेस में एक प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, कभी कभी जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट है इसके अंदर 10 लोग रहते हैं, एसएपी के एमएम के 10 लोग हैं, तो तुम्हारा टीम लीड क्या बोलता है, असगर तुम सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, खाली ये टाटा ग्रुप के लिए क्लाइंट कंपनी कोड तो ऊपर के डिपार्टमेंट हेड्स बना लेते हैं ऑलरेडी, ये प्लांट्स, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ग्रुप अपन एमएम वाले बनाते। असगर तुम क्या करो, जितने भी प्लांट्स होना, स्टोरेज लोकेशन होना, कॉन्फ़िगरेशन पूरा तुम देखो, ठीक है। और एक बंदे को बुला के बोलता है असलम तुम इधर आओ, तुम्हारा काम क्या है, जितने भी मास्टर डेटा मटेरियल्स क्रिएट करना है तुम क्रिएट करो। और एक बंदे को वसीम को बुला के बोलता है वसीम यार तुम्हारा काम है, जितने भी सप्लायर्स है टाटा ग्रुप के, टाटा ग्रुप कहीं से भी चीज़ें खरीद सकता है भाई, टाटा ग्रुप हर चीज़ को नहीं बना लेता, हर चीज़ बाहर से खरीदना पड़ता है उसको, पेंट डालना उसकी कार को तो कार पेंट बाहर से खरीदना पड़ता है, टाटा ग्रुप का कोई पेंट नहीं है, ठीक है, तो पेंट बाहर से खरीदना पड़ता है उसको, तो बाहर खरीदना बोलते हो। पेंट वाले का, पेंट वाले कितने के लोग रहते हैं, एशियन सप्लायर, एशियन वाला रहता तुम्हारे को जो है, और क्या बोलते हैं, और कोई ग्रुप नाम बोलिए पेंट्स के, उसमें नेरोलैक है, तो मैं कहीं भी खरीद सकता हूँ, नेरोलैक एक सप्लायर है, वो सप्लायर का नाम कोड देना पड़ता है, नेरोलैक बोल के नहीं लिख सकता हूँ मैं वहाँ पे, तो उसको कोड देना पड़ता है, नेरोलैक पे कोड देता हूँ मैं, नेरोलैक का तो ये ना उसके एक नंबर देता हूँ मैं इसके अंदर, सप्लायर एसएपी के अंदर वो कैसे देते हैं नंबरिंग, वो सब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कोड्स देना पड़ता है इसके अंदर, राइट। सो ये कंपनी के अंदर कितने भी प्लांट्स हो सकते हैं, और एक कंपनी के अंदर एक ही प्लांट हो सकता है, याद रखिए, ओके। सो अब यहाँ पे एक सिनारियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कंपनी कोड के एक ये 2 प्लांट जो दिख रहे हैं ऑरेंज में, फर्स्ट वाले के पास, ये प्लांट को एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन लगा दिया, ए प्लांट को एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन लगा दिया, मैं इसका काम मैंने देख लेता, इसका काम मैंने देख लेता, तो क्या सिनारियो बोलेंगे इसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेसिफिक। ये दोनों प्लांटों को एक ही बंदा खरीद रहा भाई, उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस प्लांट। ये दोनों ग्रीन कंपनियां है, ये 2 ग्रीन कंपनियों को भी एक ही बंदा है बीच में खरीदने वाला, तो मैं क्या बोलूंगा, तो ये क्रॉस कंपनी कोड वाला ये तीनों प्लांट को खरीद सकता हूँ, याद रखिए, समझे ना बात, जी दो कंपनी कोड के बीच में एक नहीं चाहिए, तो मतलब इसका मतलब ये है 2 प्लांट्स को जो भी होना तीनों को भी देखता होने का, ये 1 2 वाले को भी देखता, 3rd वाले को भी देखता, याद रखिए, ये सिनेरियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सेम प्लांट्स नहीं है ना सर, ये डिफरेंट प्लांट्स है ना, डिफरेंट प्लांट्स है,
ये हाँ, तो सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के क्रॉस अंदर कंपनी है। क्रॉस कंपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रॉस प्लांट सर, ये बोले तो क्या different- है, ये सर, कंपनी कोड के अंडर दो प्लांट जो है ना, ये दोनों के बीच में खरीदारी करा तो उसको क्रॉस प्लांट बोलूंगा मैं। ये अब ये दोनों प्लांट को भी प्लान के खरीद रहा दोनों तो डिफरेंट ये कोर्स रहते ना सर ये? डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। ये प्लांट को देखिए, कंपनी कोड के नीचे दो प्लांट्स है ना, इसको मैं फर्स्ट वाला प्लांट देखिए हैदराबाद है समझो, HY01 देता हूँ। ये प्लांट अगर विजयवाड़ा में है तो सर स्टोरेज लोकेशन 3 कई को बता रहा सर इसमें? नहीं नहीं सुनिए भाई, वहां तक नहीं गया ना भाई, मैं प्लांट करने हूँ, मेरे से एक स्टेप आगे जा रहे हैं आप। मैं प्लांट करने खड़े का हूँ जरा। प्लांट के पास देखिए, ये कंपनी कोड के नीचे दो प्लांट्स है, तो याद रखिए ये कंपनी कोड के नीचे ये नहीं है, इसको मैं हैदराबाद वाला समझेंगे। हैदराबाद वाले को HY01 बोला, ये प्लांट का नंबर मैं दिया विजयवाड़ा वाला है समझिए, विजयवाड़ा VJ01 दिया। या कहेंगे एक प्लांट है थर्ड वाला, ये मुंबई का है समझिए, मुंबई वाले को MI01 बोल के दिया। ये तीनों प्लांट को, ये तीनों प्लांट को अगर कोई परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जो परचेज कर रहा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस कंपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा, क्रॉस प्लांट नहीं बोलूंगा यहाँ पे। क्या बोले तो ये तीसरा जो प्लांट है ये दूसरा कंपनी का है इन्हें, तो दूसरे कंपनी का भी नहीं खरीद कर रहा बोलता, क्रॉस कंपनी हो गया। याद रखिए सिंपली, कंफ्यूज नहीं होना। समझ गए मेरी बात? लेकिन वो दोनों कंपनी कोड को एक ही जना परचेस कर रहा है ना। एक ही परचेज कर रहा तो उसको क्रॉस कंपनी कोड बोलेंगे। उसको क्रॉस कंपनी कोड मतलब वो जी तीनों प्लांट को भी खरीदता है उन्हें। अगर समझिए कि एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया मैं, इन्हें ये तीसरे वाले को मैंने पकड़ा लेता हूँ भाई, उन्हें कहा की है ये दोनों का देखता हूँ मैं, हैदराबाद का विजयवाड़ा का देखता हूँ बोलता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस प्लांट स्पेसिफिक कंपनी कोड है। क्रॉस प्लांट क्रॉस परचेजिंग। प्लांट स्पेसिफिक टू दिस कंपनी, ये कंपनी कोड का, ये कंपनी कोड का, इस कंपनी स्पेसिफिक बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये प्लांट अगर ये प्लांट कोई और विजयवाड़ा वाला बोले अरे आंध्रा डिवाइड हो गया ना भाई, अभी कांके जो है अब मैं विजयवाड़ा वाले को खरीदता हूँ बोल के बोलता है हैदराबाद में जो बंदा बैठ के, तो चलो विजयवाड़ा वाले को एक अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, विजयवाड़ा में लब्बीपेट में लगा लिया मैं, और हैदराबाद के अंदर एक सेंटर लगा लिया अमीरपेट में, उसको बोला तो ये हैदराबाद की खरीदारी कर तेलंगाना की, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, परचेज स्पेसिफिक। परचेस स्पेसिफिक होता प्लांट स्पेसिफिक। किसकी दुकान होने, जिसका हैदराबाद का खींचा होने, तेलंगाना का तेलंगाना देख लेगा, आंध्र का आंध्रा देख लेगा, तो ये हो गया सिनेरियो। अब देखिए एक प्लांट के नीचे एक स्टोरेज लोकेशन हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। मतलब एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देखिए आप, कि मेरा समझिए कि मैं जैसा बोला क्वेश्चन है, जी, ये सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? क्या बोले, सेंट्रल परचेजिंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंपनी कोड को परचेज करता उन्हें से, सेंट्रल वाला पूरे कंपनी कोड को, जैसे मैं बोला ना एक कंपनी कोड क्रॉस कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोला ना, उसको हम सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग बोलते हैं और सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। समझ गए? पूरे कंपनी कोड मतलब एक क्लाइंट के नीचे एक ही ग्रुप रहता, उसको सेंट्रल बोलते, मतलब हेड ऑफिस जैसा बोलते हैं ना आप। हेड ऑफिस क्या करता है, हैदराबाद में अगर एक हेड ऑफिस टाटा मोटर्स की, वो टाटा मोटर्स की हेड ऑफिस को हर टाटा का शोरूम से रिलेशन रहता, तो इस तरह जो उसको मैं वो हेड ऑफिस क्या बोलता हूँ, मैं सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस बोलता हूँ, सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ, तो विच विल प्रोक्योर थिंग्स फॉर ऑल द कंपनी कोड्स, वो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग बोलते हैं उसको, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल, आप जब से सवाल करे कोई कि सर यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक प्लांट के नीचे एक स्टोरेज लोकेशन है, यहाँ पे एक प्लांट के नीचे 3 है। ओके, हाँ, मेरे प्लांट के नीचे मैं कितने भी स्टोरेज लोकेशन रख सकता हूँ। लोकेशन बोलो तो क्या है, देखिए मैं एग्जांपल बोलने जा रहा था, समझे कि मेरा शोरूम एक हैदराबाद के सेंटर में, समझे कि अमीरपेट के अंदर मेरा एक शोरूम है, तो शोरूम मैं स्टार्ट करा 2001 में शुरू करा, समझिए शोरूम मेरा शुरू करा। जब क्या हुआ, मेरे पीछे थोड़ी जगह रहती थी, वो जगह में मैं कारा स्टोर करता था, 10-15 कारा आते थे वहाँ से मैं सेल करता था शोरूम की जितने भी सेल्स है, तो वो मेरा एक स्टोरेज लोकेशन 1 हो गया था। अब मेरे को क्या है, सेल्स बढ़ गए मेरे, अमीरपेट डेवलप हो गया, बहुत लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत लोग खरीद रहे हैं, मेरे को जो है और एक लोकेशन में खरीद मकान तो रखने, कारों को रखने, थोड़ा 1 किलोमीटर की दूरी पे जगह मिल गई मेरे को, वहाँ पे मैं लीज को ले लिया, 10 साल के लीज को ले लिया या खरीद लिया समझिए, तो वहाँ पे भी थोड़े कारा रख दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया मैं, वहाँ पे पूरा बैरिकेड कर दिया, तो वो एक मेरा स्टोरेज लोकेशन हो गया वो शोरूम के लिए, मतलब और एक सेकंड वाला हो गया। अब क्या हुआ, मेरा सेल्स और बढ़े 2020 आए तक, और सेल्स बढ़े, मेरे को वो जगह भी नहीं बस हो रही, और थोड़ी दूर पे क्या करा मैं, और एक स्टोरेज लोकेशन बना, गोडाउन, मतलब गोडाउन बोलते ना, देखिए कितने भी गोडाउन हो सकते हैं मेरी दुकान को, ये गोडाउन में खत्म हो गया था और एक गोडाउन से, और एक गोडाउन खत्म हो गया था और गोडाउन, एक गोडाउन में नहीं बस हुआ था और एक गोडाउन में डाल लेता हूँ मैं, ऐसा जैसा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल आपका, समझ रहे ना। तो ये आपके स्टोरेज लोकेशन है, एक एक एरिया, अगर एक ही जगह है तो मैं 10 नामा नहीं तो मैं एक ही स्टोरेज लोकेशन बोलता हूँ। उसके अंदर है भाई स्टोरेज लोकेशन के अंदर मतलब समझे कि क्या बोलते हैं अमीरपेट के अंदर ही है, और उसके क्या बोलते हैं जहाँ पे शोरूम है, शोरूम के पीछे अगर उन्हें है तो उसके एक ही स्टोरेज लोकेशन बोलता हूँ। जरा डिस्टेंस में और एक जगह मेंटेन कर रहा, वो एरिया को, मतलब अमीरपेट से जरा दूर आके एसआर नगर है, एसआर नगर में अगर सेल्स का वहाँ पे एक शोरूम है, वहाँ पे एक स्टोर का लोकेशन है जहाँ पे कारों को स्टोर करता हूँ, मगर सेल्स वहाँ पे नहीं है, तो मैं उसको और एक स्टोरेज लोकेशन बोलता हूँ, ठीक है। वो प्लांट के अंदर ही है, मतलब ये किसके है, ये सिर्फ अमीरपेट वाले का है,
एलबी नगर वाले का हक नहीं है यहाँ पे। एलबी नगर वाला हमारे पास बस एक ही स्टोरेज लोकेशन है, वहाँ पे पूरे कारा पकड़ रहे हैं उसको। उसको भी समझ आया कि भाई एक नहीं बस और मेरे को और एक लगाता हूँ, तो और एक कहाँ की हयात नगर में ले लेता, जहाँ पे जगह सस्ती रहती है, प्लेस भी रहता। हयात नगर में भी फील हो गया, उसके बाद रामाजी फिल्म सिटी के पास ले लेता। तो कितने भी स्टोर लोकेशन में ले सकता हूँ, कहीं भी स्टोर कर ले सकता हूँ मैं। अगर मैं नया बना रहा हूँ तो नया लोकेशन देना पड़ता है, उसका एड्रेस के साथ मैं क्रिएट करता हूँ। स्टोर लोकेशन बनाए तो क्या होता है, एसएपी के अंदर देखिए, यहाँ पे एसएपी स्टोर लोकेशन बनाते ना, वहाँ पे एड्रेस के साथ देते हैं, हयात नगर पिन कोड देते हैं, सब चीजें देते हैं वहाँ पे, याद रखिए। नाम एक ही था, स्टोरेज लोकेशन का नाम 4 कोड का डिजिट रहता। जैसा मैं आपको बोला SL01 स्टोरेज लोकेशन है। SL01 मतलब क्या है, स्टोरेज लोकेशन 1। मैं समझा, मेरे प्लांट के अंदर, हैदराबाद के प्लांट के अंदर, वहाँ पे हयात नगर के 1 को 1 दिया, देशू नगर को 2 दिया, अमीरपेट को 3 दिया, ऐसा नगर को 4 दिया, ऐसा दिया तो मैं SL01 SL01 ऐसा क्रिएट करता हूँ। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप, PA01 लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, अल्फा न्यूमेरिक रहता है वो। स्टोरेज लोकेशन आप बनाते ना, तो बनाने के बाद वो हर स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस भी लिखता है, उसके अंदर ओपन करने के बाद नीचे एड्रेस पूरा लिख देता है, वो उसका एड्रेस है। वो स्टोरेज लोकेशन के अंदर वहाँ पे जो उसका जो स्टोरेज का मैनेजर है, उसका मैनेजर का नंबर भी वहाँ पे रहता है, आप लिख सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसएपी। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करते स्टोरेज लोकेशन के नीचे अगर और कुछ को ओपन करना है तब वो कर सकते हैं हैं। और क्या रहता है नहीं, स्टोरेज लोकेशन में? कोई एग्जांपल बोलो मेरे को, एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक प्लांट है हैदराबाद का, उसके नीचे जो स्टोरेज लोकेशन है उसमें मैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज अलग अलग स्टोर करना चाहूँ फिजिकल। स्टोरेज बिन्स बोलता हूँ मैं इसको, वो अलग टॉपिक है। स्टोरेज लोकेशन के बारे में अगर अपन वेयरहाउस के बारे में बात करेंगे पूरा, ये स्टोरेज जी, जी। लोकेशन बोलते, स्टोरेज लोकेशन के अंदर क्या होता है, फिर स्टोरेज लोकेशन बड़े बड़े स्टोर होता है। आप फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस देखेंगे, बहुत बड़े रहता है, बेंगलोर के अंदर विजिट करेंगे, बड़े बड़े जी। एकर्स के, 2000 एकर्स का भी रहता, 1000 एकर्स का भी रहता। उसके अंदर अलग अलग रहते हैं, मोबाइल्स का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन अलग रहता, ग्रोसरीज का सेक्शन अलग रहता, अलग अलग सेक्शन रहते हैं। उसको स्टोरेज बिन्स बोलते हैं अपन, स्टोरेज रैक्स बोलते हैं। अगर कोई ओके। उसके अंदर है जो वेयरहाउस यस में सर। काम करके, वो लोग मालूम रहता है, स्टोरेज रैक्स बोलते हैं, अलग अलग रैक्स रहते हैं। जी, तो वो रैक्स किधर में है उस रैक में, किधर हम मालूम होता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो हाँ वो एग्जैक्टली मालूम उसमें होता है। हायरार्की में ये स्टोरेज लोकेशन लास्ट है, उसके बाद कुछ भी वो नहीं है। स्टोरेज लोकेशन के बाद कुछ भी नहीं है, याद रखिए। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अच्छा, अंदर स्टोरेज लोकेशन के बाद कुछ भी नहीं है। तो ओके ठीक है, ओके। स्टोरेज सर लोकेशन। असगर भाई मेरा क्वेश्चन है एक, जी, आप जैसा कि क्वेश्चन पूछिए, 1 मिनट रुकिए। क्लाइंट अभी देखिए मेरा 1 मिनट, फिर उसके बाद सवाल करेंगे अपन। यहाँ पे जो है एसएपी, कल एसएपी जो है ये लॉगिन स्क्रीन था हमारा। ये लॉगिन स्क्रीन जैसा मैं ओपन करा था यहाँ पे, ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका एसएपी दिखता। वो एसएपी में कैसा बनाना, मैं कल के दिन प्लांट कैसा क्रिएट करना बोलते, सो मैं आज निकल बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा टाइम ऑलरेडी 10 बज गया। सिर्फ नेक्स्ट 5 मिनट या 10 मिनट ही हम सवाल लेंगे, और कुछ भी सवाल है तो कल का क्लास हमारा सवाल से शुरू करेंगे, याद रखिए। अभी सिर्फ मैं 10-5 तक ही सवाल लूंगा, सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट में जिसको जो सवाल है पूछ सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कल क्या करेंगे हम, हमारा सेशन जब शुरू होगा मैं 8:45 को ज्वाइन करूंगा, याद रखिए। कभी भी हमारी क्लास अगर 8 to 9 है तो मैं 7:45 को ज्वाइन करूंगा, अगर 9 to 10 है तो 8:45 को ज्वाइन करूंगा। तो जिसके पास ज्यादा सवाल है उन्हें 15 मिनट पहले ज्वाइन करे, तो जो है सेशन स्टार्ट हुए तक हम सवाल कर ले सकते हैं, या 9 बजे के बाद में मैं सवाल कंटिन्यू करते रहता हूँ। तो आप लोग याद रखिए ये चीज, सवाल कल भी हो सकते हैं हमारे। सवाल आंसर होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएपी में जाके इसको कैसा बना सकते, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। समझ गए आप लोग? कल आपके पास कितने लोग यहाँ पे जो है एसएपी इंस्टॉल करे, जरा जो है आपके क्या बोलते हैं हैंड्स रेज करिए इसके अंदर, मैं देख सकता हूँ पार्टिसिपेंट्स के अंदर कितने लोग इंस्टॉल करे। कैन आई गेट एटलीस्ट 10 हैंड्स रेज? यहाँ पे एक मिला, 2 देखा मैं, 1 2 3। भाई आज मैं भी विजिट करा अमीरपेट, आप याद रखिए मेरा जो अभी जो सिस्टम यूज करो मैं, ये मेरा कोर i3 सिस्टम था, बहुत पुराना सिस्टम था मेरा, बहुत स्लो था ये। तो इसको जो है आपके पास अगर पुराना सिस्टम है, जो अगर प्रोसेसिंग उसकी स्लो है, तो आपके अंदर हार्ड डिस्क रहता। हार्ड डिस्क जो है पुराना टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी क्या है, SSD बोल के आ रहा। SSD क्या है, बहुत स्पीड रहता है। आपके जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं SSD आ रहे हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव निकाल देके जो है SSD लगाइए, आपका लैपटॉप दौड़ता, फिर कोर i5 कोर i7 के लेवल बराबर का दौड़ता। और जो है रैम मेरा 4 GB था, और एक स्लॉट है तो मैं और एक रैम भी डला लिया, 8 GB कर लिया। 8 GB की जरूरत नहीं है, 4 GB काफी है। अगर और स्पीड रखना चाहिए और नेक्स्ट 5 years चलाना है आपको लैपटॉप, तो उसको अपग्रेड कर लीजिए। ये पहला मेरा मशवरा है। सेकंड मशवरा है, सैप इंस्टॉल कराना है तो आपको अमीरपेट के अंदर जो है मेट्रो जहाँ पे उतरते हैं इमीडिएटली नीचे ही बिल्डिंग के अंदर जो है कार्तिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बोल के है, जहाँ पे मैं विजिट करा। 300 रुपये आपका लेता हूँ, एसएपी इंस्टॉल करके देता। देखिए एसएपी यहाँ पे इंस्टॉल करा, देखिए मैं आपको लिटिल बिट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस स्पीड करने के लिए क्या करना है सर? क्या बोले, परफॉर्मेंस स्पीड करने के लिए क्या करना है? SSD याद रखिए, SSD लगाना लैपटॉप के अंदर। आपके लैपटॉप के अंदर SSD मतलब आपका अंदर हार्ड ड्राइव के स्लॉट्स एक्स्ट्रा अगर स्लॉट है तो एक SSD लगाता हूँ। स्लॉट नहीं है तो पुरानी हार्ड ड्राइव निकालता, जो 500 GB की या 1 TB की जो हार्ड डिस्क है आपकी, वो बाहर निकाल देके वहाँ पे SSD प्लेस करता। तो मिनिमम 500 GB की आप खरीदेंगे, 4000 रुपये होते हैं।
मिनिमम 4,000 रुपये है किंगस्टन का, रिसेंटली मैंने खरीदा यहाँ पे। तो SSD डाला लीजिए। रैम 1400 रुपये 1500 रुपये रहता 4 GB का। रैम के स्लॉट्स कंपल्सरी, कितना पुराना लैपटॉप रहना था एक स्लॉट रहता और एक रैम डाल लीजिए। बहुत स्पीड रहता, देखिए कितना स्पीड था अभी साहब। एक्चुअली अगर पुराना लैपटॉप के अंदर मेरा सैप बहुत स्लो था, तो इसके अंदर बहुत स्पीड है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोल के, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे SAP में स्क्रीन में। जी हाँ, यहाँ पे जो है आप क्रिएट करते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर SAP के अंदर। ये इस कंपनी गए तो भी आपको एज दिखता है, ये स्क्रीन रहता। आप बोल सकते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर टॉपिक है कि सुन के जो है इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई आप लास्ट प्रोजेक्ट में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस ला के, सर मैं एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, बोल सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप? SAP का SME बनाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जितने भी चीजें हैं सब मालूम है आपको, नहीं जरूरत नहीं है। इसमें फाइनेंस की भी चीजें हैं, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट की भी चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स के भी है, एनवायरमेंट के भी, हेल्थ के भी है, प्रोडक्ट्स से तुमको मतलब नहीं है। तुम्हारा पार्ट था तो तुम बोलना कि भाई सर मैं प्रोजेक्ट में काम करा, मगर 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। सिर्फ एंटरप्राइज सेक्टर में मेरे को ज्यादा मौका नहीं मिला, हमारी टीम बड़ी थी, हमारा टीम लीड क्या बोला मेरे को, सिर्फ वो जो है प्लांट ट्रांस लोकेशन बना बोल के बोला मेरे को। तो मैं क्या करा, सीधे सीधे जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे। और मटेरियल मैनेजमेंट में मैं जाता हूँ, MM हमारा पार्ट है। MM में गए तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सर मेरा काम था सिर्फ स्टोरेज लोकेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते बैठा मैं। कितने बनाया रहे बोले तो 1,500 थे, उधर 1,000 थे, बना लेते बैठा बोल के बोला। सो दिस इज व्हाट यू गोना से इन द इंटरव्यू, याद रखिए। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का टॉपिक कल अच्छा सुनेंगे आप लोग। आज का जो टॉपिक था, इसकी जो है मटेरियल में आपको जो मटेरियल शेयर करा मैं, मैक्सिमम पूरा 98% कंटेंट में उसमें से ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो ट्यूटोरियल पॉइंट वाले बनाए हो मटेरियल को, उसके अंदर पूरा कंटेंट है आपके पास, रेडीमेड कंटेंट, एक्स्ट्रा स्टफ नहीं रहता उसके अंदर, बेकार का स्टफ। तो उसमें जो है अगर आप वो मटेरियल ओपन करेंगे, क्या पढ़ना, कौन से पेज से कौन से पेज तक पढ़ना अभी बोल दे रहा हूँ मैं, वो पढ़ लेके आइए। अब रिमेनिंग सवाल मैं कल देखूंगा इंशाल्लाह। सॉरी भाई सलाम वालेकुम, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ। क्या अभी ये सेशन का लिंक भेज सकते हैं डेली? हाँ, यूट्यूब का जो है यहाँ पे अगर एडमिन हमारे ज्वाइन होके है तो भाई जरा जो भी अपने वीडियोस आ रहे हैं जरा जल्दी शेयर करिए। हमारे एडमिन साहब जो है आज लास्ट क्लास की भी PDF नहीं आई सर। PDF 2 मिला के आज डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह। PDF की जरूरत नहीं है भाई, मैं बोला आपको। देखिए लास्ट क्लास का क्या है कंटेंट था, जरा बोलिए मेरे को, किसी को याद है तो। लास्ट क्लास का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, देखिए तो बेसिक प्रोक्योरमेंट, स्पेशल procurement cycle के बेसिक बारे में प्रोक्योरमेंट क्या था, प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या था, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट बैकग्राउंड रिव्यू, ये सब चीजें देखिए। ये डिटरमिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रिपोजिशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पे पूरी चीजें डिस्क्रिप्शन जो भी समझा आप लोगों को। प्रोक्योरमेंट वर्सेस प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक वर्सेस कंजम्पशन, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक क्या है, प्रोक्योरमेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कैसे, पूरी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। स्पेशल प्रोक्योरमेंट क्या है, कंसाइनमेंट किसको बोलते, थर्ड पार्टी किसको बोलते, पाइपलाइन किसको बोलते, तो ये सब चीजें जो यहाँ से कंटेंट है वही से। अब ऑर्ग स्ट्रक्चर पढ़ा है मैं आज टॉपिक आप लोगों को, देखिए ऑर्ग स्ट्रक्चर यहाँ है। तो पेज नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, कौन सा पेज नंबर देख लीजिए आप लोग ओपन कर लेके। ये पेज से लेके 8th या 9th था आपके उसमें। तो यहाँ से SAP ऑर्ग स्ट्रक्चर से लेके आप पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है ये छोड़ दीजिए। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी मैं दिखा दिया आप लोगों को, ये मत देखिए, ये छोड़ दीजिए। ये पेज कहाँ से देखना, यहाँ से देखना है। SAP एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये टॉपिक यहाँ से देखिए। क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट, लोकेशन, परचेज लोकेशन, इसका डेफिनेशन पूरे हैं यहाँ पे। एक क्लाइंट के नीचे कंपनी कोड हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, सब चीजें देखिए। ये कल पूरा पढ़ लेके आना आप लोग का, स्टोर लोकेशन वगैरह ये सब चीजें कहाँ तक पढ़ लेके आना, देखिए खाली यहाँ तक ही है। यहाँ से कल स्क्रीन कैसे करना मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आपको अभी दिखाया आपको। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्लिक करना, ये भी है आपको मटेरियल के अंदर। सिर्फ ये मटेरियल देख के भी आप ऐसे भी सीख सकते हैं, समझे। तो मटेरियल इतना इजी है कि ये कंफर्ट बनाना बोल तो कैसे बनाना, कहाँ से बनाना, क्या क्या क्लिक करना, स्टेज वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मेरी क्लास में कोई मिस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो साथ ही मटेरियल खोल के प्रैक्टिस कर लेना। मगर एक चीज याद रखिए कल से, कितने लोग यहाँ पे हैंड राइज करे, ऑलमोस्ट जो है ओनली 30% ऑफ द पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैंड राइज करे। उसका मतलब ये समझता हूँ कि मैं रिमेनिंग लोग SAP इस साल नहीं करे। तो एक चीज याद रखिए आपको, SAP अगर एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दूसरे दिन क्या करे आपको याद नहीं रहता। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होने के बाद मास्टर डेटा आप बना रही, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसा बनाए थे याद नहीं रहता। प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस करे तो आपको याद रहता। अगर प्रैक्टिस नहीं करे, खाली सुन के छोड़ दिए, तो नेक्स्ट चीज में जाने के बाद, क्योंकि स्क्रीन अलग अलग रहते SAP में, अरे वो कहाँ की था ना यार, वो बोल के फिर दूसरे को पूछते या मेरे को पूछते। मैं नहीं बोलने वाला हूँ आपको, सर वो कहाँ है बोले तो मैं नहीं बोलता हूँ। जिसके आप कल अगर मैं आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, कल के दिन प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे क्लास में अगर पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ। उसके बाद तीसरे दिन क्लास में पूछेंगे तो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में फिर नहीं बोलने वाले रहता हूँ, समझ रहे। क्योंकि मैं दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आप एवरीडे प्रैक्टिस करना भाई, एक चीज याद रखिए। मैं 8 से 9 भी ले सकता हूँ क्लास, 9 से 10 भी ले सकता हूँ, वो देखेंगे। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था अभी असल में मैं समझा के खत्म हो गया, और रिक्वेस्ट करके और 1 मंथ एक्सटेंड करे लोग। तो जो है मेरा टाइमिंग जो है 10 बजे तक है प्रोजेक्ट का, मगर मैं 9 बजे से 10 तक टाइम दे सकता हूँ आप लोगों के लिए। सो 9 से 10 मैं देता हूँ, तो 10 के बाद प्रैक्टिस करिए। सुबह फजर के बाद जो है बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस करिए फ्रेश दिमाग से बैठ के। अच्छा, एक तो क्या है, मेरा वीडियो आपको मिल जाता, या मैं जो पॉइंट्स वाला आपको जहन में याद रहता। फिर ये मटेरियल को रेफरेंस ले लेके SAP खोलना, करते जाना आप लोग। जहाँ पे भी आपको एरर आता है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन करके रख लेना। नेक्स्ट क्लास में शुरू होते
सर मेरे मेरे प्रॉब्लम से अब इसका कैसा करना बोलो बोल, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, या आपका स्क्रीन शेयर करे तो मैं बोलता हूँ अरे मैं तुम्हें गलती करे, ये करना है बोल के। तो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। ओके, सो कल से हम क्या करेंगे, कल मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कैसे बनाना है एसएपी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। मैं बनाने के बाद आप लोग बनाएंगे, खत्म। एसएपी में जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बोल के बोलते हैं, जिसको हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और मास्टर डेटा बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो बस बंदा एक 40% आप जो है आप बोल सकते हैं भाई चलो एसएपी में आता, अब से आप रिज्यूम बनाना शुरू कर दे सकते हो, याद रखिए। तो ये चीज़ें हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मास्टर डेटा के आ गया तो उन्हें रिज्यूम बनाना शुरू करके जो है इंटरव्यू दे सकता, ट्रायल कर सकता है, इंटरव्यू दे के बोलना उसको भाई देखो हाँ एसएपी में करा, मैं 2 प्रोजेक्टों में करा, मगर मैं मास्टर डेटा और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में काम करा, ये चीज़ों के बारे में बोल सकता हूँ बोल के बोलना। उन्हें बोलता कंपनी कोड क्या है, मियाँ कैसा बनाया तू, मास्टर डेटा किसको बोलते हैं, मटेरियल कैसा बनाया तू, मटेरियल बनाया तो मटेरियल में कितने टाइप्स रहते हैं, मटेरियल में अगर गेरन है तो गेरन को क्या टाइप ऑफ मटेरियल बोलता हूँ मैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है सवाल करता है, उसके रिलेटेड आप बोलना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। चलो हमारा टाइम भी हो गया अभी, ऑलरेडी जो है 10:09 हो गया। तो जो भी सवाल है आप नोट डाउन करिए। कल जो है अगर किसी के पास सवाल अभी पेंडिंग है, अब तक का जो टॉपिक हुआ था, तो पहले अगर ज्वाइन करे 8:45 को ज्वाइन करे तो उसके आपके सवाल में आंसर कर देता हूँ 15 मिनट के अंदर, जो इंडिपेंडेंट है किसी के। तो अगर कॉमन सवाल है 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं आप, 9 बजे से 9 10 मिनट हम सवाल देखेंगे, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। मगर आप लोग ज्वाइन, आप 32 मेंबर्स में से मैं देखा कि सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करके थे मैं जब स्टार्ट करा, तो ऐसा ना को करे। अगर आप सेशन मिस हो गए तो मैं फिर रिपीट करने वाला नहीं हूँ, आप मिस हो गए तो फिर समझ में नहीं आता। ऐसे भी एक बार हम स्टार्ट कर दिए, अगर मैं एक कंपनी कोड बना दे के प्लांट बना रहा हूँ, कंपनी कोड कैसे बनाया बोल फिर सवाल करे तो मैंने बोलता हूँ कंपनी कोड बनाना तो देखना आप कहाँ बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं ऑलरेडी, और क्लियरली समझाता हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पैरेलली प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मेरे क्लास होते ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कल के नेक्स्ट दिन सुबह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर एक चीज याद रखिए, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग एसएपी इंस्टॉल नहीं कर लिए, फौरी एक पुराना लैपटॉप ले लेना। नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं, याद रखिए पैसे बेफिजूल खर्चा मत करिए, क्योंकि कंपनी में आपको लैपटॉप देता होने कंपनी, मेरे को लेटेस्ट जो है कोर i7 का लैपटॉप ने दिया, तो लेटेस्ट एडवांस देता होने, अपने खरीदने की जरूरत नहीं है। 10,000 15,000 लगाया था आमिर पेट में लैपटॉप वहाँ मिलते हैं, वहाँ का वहाँ लेके वहाँ का वहाँ एसएपी इंस्टॉल करके लेके आ सकते हैं आप, ज्यादा जो है इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लगाना, पैसा आप लोग वेस्ट नहीं करना बोल के जो इसको कर रहे हैं। हम लोग जब ऐसे बेच के बहुत पैसा वेस्ट करें, हम लोग कोर्स एक कोर्स के पीछे 25,000 लगाए, मगर कुछ भी नहीं सिखाया उन्हें। जितने भी इंस्टीट्यूट आपको हैदराबाद के अंदर एमएपेट के अंदर है, ऐसे पे सिखाते बोलते हैं, और एक लिखता है 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोलता है, उसको एसएपी में नहीं रहता 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एसएपी में 1 साल करके रहता है, 9 साल जो है डोमेन में रहता है उसको, और उन्हें कंपनी छोड़ा हुआ रहता, कंपनी में करने वाला कभी भी इंस्टीट्यूट जाकर नहीं पढ़ाता, उसके पास टाइम नहीं रहता। जो कंपनी में जॉब करता उन्हें, और उसकी सैलरी अच्छी रहती, साथ में जो कर रहा है उन्हें पे स्केल अच्छी रहती, तो उन्हें कभी भी जाके इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता। बहुत कम लोग रहते जो इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो ठीक है, और जो भी सवाल आते हैं, अटेंडेंस शीट जो है आपको शेयर किया जाएगा, उसको फिल करें। और नेक्स्ट चीज क्या है, जो भी सवाल आते हैं आप नोट डाउन करके रखिए। ये मटेरियल के अंदर अगर किसी को और ज़्यादा इंटरेस्ट है, आज की टॉपिक का भी पढ़ ले, और कल जो टॉपिक बोलने वाला वो भी पढ़ ले, तो और भी अच्छा है, और आसान होता है आप लोगों को। अगर आपके पास टाइम भी है तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको मटेरियल पहले शेयर कर दिया, ताकि आप लोग आज की क्लास की रिफर कर सकते हैं, पुरानी क्लास भी रिफर कर सकते हैं, और आगे वाली क्लास भी रिफर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। Jazakallah. I have already shared the attendance sheet. Please mark your attendance. And thank you so much for attending this. और यहाँ पे जो चार्ट में जो शेयर करे प्लीज यहाँ पे जो है अटेंडेंस दीजिए, ठीक है। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे 32 मैं देखा मैक्सिमम लिमिट 32 लोगों की, 34 तक गए शायद, तो जो है 37 थे। 37 लोगों का अटेंडेंस जो है हमारे को आना, ठीक है। चलिए, Please share the videos for Saturday. एडमिन, अगर एडमिन साहब हमारे ग्रुप में जॉइन होके है तो जरा शेयर करिए हमारे, या मैं उनको सेपरेटली पिंग करता हूँ मैं, क्योंकि एडमिन ऑलरेडी जो है आज मैसेज डाले थे ना, उनका नाम क्या है हमारे, एक सेकंड, हमाद भाई बोल रहे हैं क्या? विखार? हमाद भाई नहीं बोल रहे हैं, हमाद नहीं होता, हमारे जो है विखार शाहिद है, पीएसएफ के शाहिद है। अगर शाहिद इस ग्रुप में है तो शाहिद जरा प्रोग्राम ये होता है जो है, जो लिंक है शेयर करिए, नहीं तो जो है शाहिद मैं ग्रुप में पिंग करता हूँ कि शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए, 3 क्लासेस के सर थे, कल का शेयर नहीं हुआ था। कल का पुराना, कल का भी जो शेयर करो बोलता हूँ मैं, कल जो क्लास थी हमारे परसों जो हुई थी, वो क्लास का भी शेयर करो बोलता हूँ, और जो है मटेरियल भी, और आज का मटेरियल तो अवेलेबल है आपको, पीपीटी